here today we will see some string functions, numeric functions, and date functions. This call is now being recorded. So actually for that we have to consider this table, that is ticket header. Okay, okay, तो here there is a ticket number, वो मैं आपको इस पे भी बता दूंगी Oracle में. DOI means date of issue, issue कब किया आपने वो ticket. Date of DOT means date of travels, किस दिन आपको travel करना है. Okay, then origin, what is the origin from where you are going to start your journey. Destination, how many adults are there, how many children are there, और total fare. Okay, तो ये total fare जो है वो नीचे गया है. Okay, same. And second table is ticket detail. Table name is ticket detail. First one was ticket header and second one was ticket detail. तो इसमें है name, sex, age और fare. ठीक है, तो हमको टेबल से ज्यादा ये नहीं है, हमको ज्यादा you have to concentrate more on the functions. Okay, so first we will see character functions. So here init cap. Init cap means initial capital. So it converts the first letter of all words in capital. Okay, so जैसे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, select init cap in bracket name, name नाम का column. Okay, from ticket detail, table का नाम. So this is the important init cap and name means name is the column name from this ticket detail. So it will convert all the first character of the name for all the names in the column as capital. Okay, for example आप ये तो column name लिखा है, but आप ऐसे भी separately ले सकते हो. Select init cap, single quote, you have to write down any name from dual. As this name is not from any table, you have to write down from dual. That you know. Dual is the system table. The difference क्या है? Column name को no need to give the single quote to the column name, but if you are writing specially separately any name here, then you have to give the single quote. Okay, so see here output में आपको मिलेगा C is capital. Why? Because it is init cap. तो ऐसे छोटे छोटे सारे functions हमको देखने हैं आज. I will show you the execution. हम पर्टिकुलर नेम सिलेक्ट करते हैं तो वो सिर्फ नेम का वर्ड ही कैपिटल होगा? नहीं, कॉलम मैं दिखाती हूँ आपको एग्जीक्यूशन. नेम इज कॉलम नेम फ्रॉम द टिकेट. सेलेक्टिंग सिलेक्ट इनिट कैप चारू, देन बाकी नेम्स कैपिटल नहीं होंगे? नहीं, बाकी नहीं, सिर्फ ये नाम है ना आपके पास, तो सिर्फ इसका ही कैपिटल होगा. और ये नेम मींस दिस नेम इज फ्रॉम द, दिस इज एक्चुअली द कॉलम नेम फ्रॉम द टिकेट डिटेल. तो उस टेबल में आपने जितने सारे नेम्स डाले होंगे वो सारों का कैपिटल हो जाएगा. Okay, I will show you execution. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही का ही होगा, ये जो लिखा है इसका ही होगा. तो मींस आप कॉलम नेम भी दे सकते हो, अगर आपको सेपरेटली कुछ चाहिए तो आप सेपरेटली भी दे सकते हो. ओके, ऐसे एक दो मैं बताती हूँ, बाद में आपको पूरा मैं वहीं पे एग्जीक्यूशन दिखाती हूँ. सेकंड है here lower, it converts upper case to lower case. Select lower in bracket name from ticket detail. तो उसमें अगर आपने ये select है, select means it will display it on the screen, not in the table. It will not make any changes into the table. Select means it will make those changes on the screen only. Okay, अगर आपने टेबल में कैपिटल में इंसर्ट किए हैं नाम, नेम, अगर अभी लोअर चाहिए स्क्रीन पे, ओके, then you have to give this lower command. Select lower in bracket name from ticket detail. तो सारे के नेम जो है वो सारे lower case में डिस्प्ले होंगे. Otherwise you can write down like this. Select lower of Charu. As this is all letters are capital from dual. As it is a lower, ये Charu C आएगा. Lower means वो पूरे lower case में convert हो जाएगा. But to display it on the screen only. Okay. So I will now first of all I will share the Oracle screen and directly I will execute all the functions there. Okay, so you can properly understand. So now I will share the Oracle screen. Okay, मैंने कनेक्ट वगैरह सब कर लिया है. Okay, so now same I will first of all explain here. हाँ, आपको मैं पहले तो टेबल दिखा देती हूँ. ये क्या है, लास्ट वाला कॉलम जो है टोटल फेयर वो नीचे आया है. ओके, सो हमको उसमें ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, हमको ये थोड़े बहुत काम है बाकी कॉलम्स के. तो ये टेबल से
have created this table and I have inserted data into this tables. Okay, so यहाँ पे देखो, अब मैंने A कैपिटल डाला है, S कैपिटल डाला है, C स्मॉल है फर्स्ट लेटर, बट मुझे स्क्रीन पे अगर वो चाहिए कैपिटल. ओके, so here I will show you the execution here. So here all letters becomes capital. टेबल में स्क्रीन पे होंगे, टेबल में नहीं होंगे, मैं पहले ही बता रही हूँ. As this is a select command means it will display on the screen only. Okay, so C कैपिटल हो गया, A और S तो ऑटोमेटिकली था, पर जो नहीं है वो हो जाएगा. Okay, so all first letters will be capital. अब ये जो कमांड है ये अलग कमांड है. सिलेक्ट इनिट कैप ऑफ चारू वाली जो कमांड है वो अलग, उसका ये प्रीवियस वाली कमांड के साथ कुछ लेना देना नहीं है. ओके, दिस इज अ सेपरेट मींस मुझे ये बताना है कि आप सेपरेट नाम लिख के उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, लोअर केस, अपर केस, या तो फिर किसी टेबल का कॉलम नेम दे सकते हो. नेम इज हियर द टिकट डिटेल. टिकट डिटेल का है ना, देखो नेम मींस हियर कॉलम नेम है. नेम मींस ऐसा क्या बोलते हैं उसको, नेम नहीं है, इट इज अ कॉलम नेम. ओके ओके, देन सेकंड वन इज इनिट कैप हो गई. अब लोअर कॉपी here. अब ये A और S was capital, now it becomes lower case. Okay. Now अगर आपको सेपरेटली देना है तो आप सेपरेटली भी कोई नाम दे सकती हो. Okay, this was all letters were capital, now it gets converted into lower case. Okay. Next is the upper case. अब upper case will convert it to the upper case. Okay, so copy, select upper of name from ticket detail. सारे उसने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिए. ऑन द स्क्रीन ओनली. ओके, ऑन द स्क्रीन ओनली. सो अब मैं आपको पूरे टेबल से रिलेटेड ही दिखाती हूँ. ओके, आप बाकी all those are in the PPT also. Okay, see a separate name I have given, that also gets converted in all capital letters. Now next one is L trim. See here, now this is little bit different function. See here, L trim. Select L trim of origin. Origin is our column name. Okay, comma bank from ticket header where origin equal to Bangalore. So L trim. L trim means trimming. Trimming means it will trim this bank from this Bangalore. Okay, it will trim. L trim. L means left side. Left side से अगर कहीं पे bang है, BANG, so it will trim it means cut it and you will get the output as lower. And origin is our column name. Okay, so ये जो फंक्शन से पूछे जाते हैं. Okay, in the same way I will show you one separate function for this L trim. Good morning. Select L trim. Here it is, origin was a column name, so no need to give the single quote. For this bang only we have given single quote. But here good morning, this is not column name, this is our own string. Okay, this is our own string, that's why we have to write it down in a single quote. ठीक है, ये चारों भी हम यहाँ पे लिखते हैं तो we have to give a single quote. Column name को single quote नहीं देना है. So good morning, and what I have to trim it from the left side, good. So the letter which is from on the left hand side, good, that gets trimmed और हमको क्या मिलेगा, morning. Okay, in the same way we will see R trim, means it will trim or cut that word from the right hand side. Okay, यहाँ से लेती हूँ, एक मिनट ना. Single quote should be proper.
as this is R trim, so from right hand side it will trim that word LORE from the right hand side. Okay, LORE gaya, what is the remaining word? That is bank. Okay, origin means origin से वो एक ही रो मिलेगा हमको. सिलेक्ट R trim origin से हमको जिसका origin बैंगलोर है ऐसा भी एक ही मिलेगा या एक से ज्यादा भी रहेगा, whatever it is, but it will trim that LORE word from the right hand side. Okay, R trim means on the right hand side. Again I am giving good morning, comma morning, R trim. So right hand side say morning word will get trimmed or cut and you will get output as a good. Are you getting this? Functions, these are character functions. Are you getting? नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो. सिंपल है, आप जो फंक्शन उसको दोगे वो उसका आउटपुट दिखाएगा. ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रांसलेट. ओके, ट्रांसलेट. सो ट्रांसलेट मीन्स हियर see here, select translate in bracket destination. Destination is our column name, origin and destination. Okay, so destination A comma E from ticket header means A is replaced by E in the destination. यहाँ पे देखो मदुराई, तो A यहाँ पे था सेकंड पे और यहाँ पे भी A था, so A gets replaced by E, that is translate. Okay, second one is again translate का और एक सेपरेटली बताती हूँ आपको. Here, select translate Jack. J should be replaced with by B. So you will get back here. Okay, means ऐसा कुछ words होंगे तो उसके लिए इसका use होता है. Jack is replaced by back. Okay, so this is translate. Now next one is replace. Now what is the difference between translate and replace, that we will see. Okay, translate, okay, replace. Replace. Okay. अच्छा कॉमा नहीं है, शायद वहां पे कॉमा नहीं दिया है. See here. E is wherever it is an E, Madurai, MA. A is replaced by BC. See here, A is replaced by BC. Now what is the difference between translate and replace? In translate you can replace only one character. Okay, but here you can replace by two characters. एक की जगह दो कैरेक्टर्स या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स यहाँ पे रिप्लेस हो सकते हैं. बट इन ट्रांसलेट ओनली one character is replaced. Okay, so that is the difference. So अब देखो एक सेपरेटली बताती हूँ आपको. Copy, replace Jack. J should be replaced by B, so you will get output as black. Okay, because two characters are replaced by one character. Then substring. Next function is substring. See here what happened here. SUBSTR. Substring. Substring means small part of anything. Here it's taking small part of the name column, means word. Okay, so select SUBSTR means substring name. Name is our column name. It is 3,4 from ticket. This is what it will do. मैं आपको पहले select name करके दिखाती हूँ. Select name from ticket detail.
देखो यहाँ पे क्या है, चारू, अनिल, स्मिता. ओके, सो सब स्ट्रिंग नेम कॉमा 3 कॉमा 4, इस नेम कॉलम में से वो क्या करेगा, starting from third character, next 4 characters it will display if next 4 characters are present. So starting from third, so starting from third कौन सा आएगा, first इसका A, तो A R U आया, fourth letter नहीं है तो it will not display, but if it is present there it will display the fourth letter also. Okay, starting from 3, A N I L, starting from 3 I L, so it will display starting from 3 next 4 characters. Then here it is Smita, SMITA, so third is ITA. Okay, so substring में से एक छोटा सा part लेगा वो. Okay, so starting from third character, next 4 character it will display. ये एक separate दिखाती हूँ आपको. See here again it is separate. So this now we have to write down it in a single quote. Okay, from dual. So it will start from 5th letter and display next 3 characters. So we will see which is the 5th character. 1, 2, 3, 4, 5th. 5th one is T. So from 3rd letter, from 5th letter, next 3 characters. So TOS उसने display किया. Okay, आगे क्या और कुछ नहीं करेगा. Only 3 characters starting from 5th character. Now length. It will display just the length of the see here 5. CHARU is having 5 characters, that is the length. ANIL is having 4 characters and Smita is having 5 characters. So that is the length of that character. Okay, or length of that word. Now next one is L pad. L padding. Okay, so what it will do, see here. L pad means लेफ्ट हैंड साइड से पैडिंग होगा. ओके, मीन्स L pad हम क्यों यूज करेंगे, फॉर व्हाट यू कैन से राइट, क्या बोलते हैं उसको, राइट अलाइनमेंट. मीन्स राइट साइड से सब एक लाइन में अगर आनी चाहिए ऐसे हमको लगता है, क्योंकि हर एक नेम की लेंथ तो अलग है. ओके, द लेंथ ऑफ ऑल these words or all these names are different, but I need right alignment, राइट साइड से एक लाइन में आनी चाहिए सबकी एंड में. तो I will give here select L pad name 10. हाँ, 10 means total 10 characters. Okay, it should be. And star, instead of star you can give blank space also. blank space दोगे तो और में भी अच्छा दिखेगा. So अब चारों में क्या है, 5 कैरेक्टर्स है तो 5 स्टार लग जाएंगे. रिमेनिंग टोटल 10 होने चाहिए. अनिल में अनिल is having 4 characters, so 6 stars will be there because total length should be 10. Okay, so remaining whatever are the remaining characters, okay, so it will display there a star. Okay, you can, instead of that you can give blank space also. So means L pad means left hand side से star लगेंगे. Okay, in the same way R pad is there. R pad means right hand side से लगेंगे. ओके, क्योंकि हमको ये ऐसे थोड़ा ये लगता है ना आगे पीछे है तो हम उसको राइट हैंड साइड से देंगे अलाइनमेंट के लिए वो. देन ASCII, see here. कैसे होता है ASCII वैल्यू, see here I will show you. फिर ASCII वैल्यू क्या होती है कि means it is decided that for capital A it is 65, for capital B 66, 67, 68 तो ऐसे पूरे Z तक जाएगी. Okay, but means capital A you have to remember that capital A starts from 65. ASCII value of capital A is 65. And there is some long form for ASCII also, American Standard Code, something like this. Okay, so that is standard code. Okay, and for small a, whatever it is, for small a
date is 97. Means for small ABCD ASCII values will start from 97. Small b के लिए 98, c के लिए 99, like that. So you should remember always that the ASCII value of capital A is 65 and ASCII value of small a is 97. आगे का sequentially जाएगा 97, 98, 99, 100, small a, b, c, d, e, f. And this is for capital A, b, c, d, e, f. Capital B 66, capital C 67, like this up to Z. Okay, these values are fixed. Now opposite of that CHR कि 65 का character क्या है? Okay, so it will display like this CHR. Select CHR 65 from it. Now 65 is capital A. Okay, so 65 is capital A. So ASCII का opposite है. Okay. Okay, are you getting these characters? Because string functions are completed here. I am going to start the date functions. ये समझ में आया सबको? If any difficulty, you can ask me. अभी पूछ लो, कुछ confusion है, कुछ difficulty. Okay, no problem. सबको समझ में आया? बिल्कुल simple है वैसे, इतना कुछ ये नहीं. Now date conversion. Suppose अब now date conversion means कैसा है कि सपोज अगर मुझे ऐसा डेट हम डालेंगे टेबल में, ओके, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो मुझे ऐसा चाहिए कि जिनका बर्थडे जनवरी महीने में है उन लोगों के नाम चाहिए. ठीक है, जिनका बर्थडे जनवरी महीने में उनके नेम्स मुझे चाहिए. सब होगा मीन्स कैसे होगा कि हमको हमने तो इंसर्ट करते समय पूरा डेट डाला है, मंथ, डेट, मंथ मीन्स डेट, डे, मंथ एंड ईयर, dd dash m1 dash yy. अब उसमें से सिर्फ मंथ निकालना है अगर आपको, so you have to use some special function that is called as to underscore char. Okay, means it will convert, the date conversion function means it will convert from one data type to another. Okay, so I will show you first of all. या उसके लिए अलग फंक्शन है, बट मैं अभी पहले आपको ये बताती हूँ. देखो, अगर मुझे सिलेक्ट टू कैर DOI कॉमा मंथ फ्रॉम टिकट रीडर, मींस अब डेट का प्रॉब्लम कैसा है, तो हम टेबल में कैसे इंसर्ट करते हैं कि डे मींस डेट डैश MON DD डैश MON डैश YY. अब अगर उसमें से सिर्फ मुझे DD एक्सट्रैक्ट करना है, या ओनली मुझे मंथ एक्सट्रैक्ट करना है, या ओनली ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, ओके, तो we have to use to underscore char. इस डेट में से हमको कोई छोटा सा पार्ट अगर एक्सट्रैक्ट करना है, या तो dd, या तो MON, या तो ईयर YY, तो उसके लिए हमको to underscore char ये फंक्शन यूज करना है. ओके, सो हियर अब व्हाट आई हैव रिटन select to underscore char DOI डेट ऑफ इश्यू, हमारा कॉलम का नाम है जिसमें डेट इज इंसर्टेड. मंथ, अब मंथ पूरा लिखा है मैंने फ्रॉम टिकट हेडर, तो मंथ लिखा है, पूरा लिखा है, सो इट विल डिस्प्ले the complete name of the month for all the dates. अब हमारा क्या था, मैं आपको पहले इसमें से बताती हूँ. मैंने पूरा अप्रैल ही डेट्स डाली, इसलिए वो सारे अप्रैल आ गए. अगर आपने एक इसमें अप्रैल हैगा, एक इसमें जून होगा, एक इसमें जुलाई होगा, डेट में डेट इंसर्ट करते समय तो आपको अलग अलग मंथ्स मिलेंगे. आई विल शो यू DOI फ्रॉम हेडर है ना. सी हमने क्या डाली है डेट्स, मैंने जो टेबल में डाली है सारी अप्रैल ही है. सो यहाँ पे पूरा अप्रैल 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 अप्रैल. अगर यहाँ पे मई होता या जून होता तो ये पूरा जून दिखाता आपको. अगर जुलाई होता तो यहाँ पे जून दिखाता. जस्ट आपने जो इंसर्ट किया है उसके मंथ डिस्प्ले हो जाएंगे. ओके, और अगर इंस्टेड ऑफ मंथ, सपोज आई विल राइट डाउन ओनली 3 कैरेक्टर्स, दैट इज MON, only 3 characters, that is MON. So it will display only 3 characters of the month. Okay, see here. Select to char DOI comma MON instead of whole month. Suppose I have written MON, so it will display only 3 characters. ये टेबल में जो डाला था आपने उसके मंथ्स डिस्प्ले हो जाएंगे यहाँ पे, बट इट विल डिस्प्ले ओनली 3 characters. Okay.
अब सिर्फ मुझे डीडी निकालना है इसका, ओके, मींस डेट में से। सो डीडी, देखो डीडी ये हमारा ओरिजिनल टेबल है, सिलेक्ट डीओआई फ्रॉम टिकट हेडर। तो यहाँ के डेट्स देखो 10, 12, 21, 30, 10, 12, 21, 30 फॉर सम कैलकुलेशन पार्ट। मुझे ये जरूरत पड़ सकती है कभी कि मुझे सिर्फ मंथ चाहिए या फिर मुझे सिर्फ डेट्स चाहिए उसकी, ओके। सो अब ये मंथ का क्या है, ये एमओएन या मंथ का, मुझे मंथ दिखाई देंगे ना सारे, ओके। तो कभी मुझे जनवरी के चाहिए सपोज फॉर एग्जांपल, तो मैं इसका यूज कर सकती हूँ। यहाँ से मुझे पता चलेगा कि कौन कौन जनवरी में है। सो डी हो गया। और अगर मुझे डिस्प्ले करना है कि वो जो डेट, द डेट दैट आई हैव इंसर्टेड ऑन दैट डे व्हिच वाज द डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ओके। सो हियर select to underscore char doi column name comma day day from ticket header. So you will get Wednesday, Friday, उस डेट को, इस डेट को तब देखो चाहे तो आप कैलेंडर में, या फिर आप थोड़ी करंट वाली डेट डालो कुछ आसपास की, ओके। सो उस दिन वेडनेसडे था, फ्राइडे था, संडे था, ट्यूसडे था, ये चारों डेट्स के डे उन्होंने बताए हैं DAY, ओके। आपको आपकी बर्थ डेट का निकालना है, मेरे बर्थ डेट पे कौन सा डे था, तो आप अपनी बर्थ डेट डाल दो टेबल में, है ना, आपको वहां उसका डे पता चल जाएगा। सपोज मुझे नाउ आई हैव टू डिस्प्ले द ईयर, मुझे ईयर डिस्प्ले करना है। From DOI YYYY means 4 digits of year, 4 digits of year from this date. So say 96, 96, 96. So 1996 in 4 digits it gets displayed. Suppose I want year only in 2 digits. Okay, year only in 2 digits. So instead of 4y, I will write down only 2y. YY. 2 char DOI comma YY from ticket header. Okay. So YY means 2 digits मिल गए, यहाँ पे पूरा मिल गया, यहाँ पे 2 digits मिल गए, okay. So now next are the again the little bit calculating functions, date functions but little bit calculating functions, okay. So add months, अगर मुझे suppose I want to add 2 months into this dates, okay. So see here how I can add months, select, अब 2 char खत्म हो गया, okay, 2 char is completed. These are the calculation part now. So select add underscore months DOI comma 2 from ticket header, means क्या होगा, DOI की जो सारी dates है उसमें 2 months, because add underscore months, so 2 months add हो जाएंगे, date वही रहेगी, year भी वही रहेगा, months add हो जाएंगे। हमारा अप्रैल था, ओके, अप्रैल में 2 मंथ्स अगर हम ऐड करते तो क्या हो जाएगा, मई एंड जून, ओके। सो ये जून सब डिस्प्ले होगी, डिस्प्ले, इट विल नॉट गेट any changes into the table. So select means it will just display it on the screen. अगर मुझे उस मंथ का लास्ट डे चाहिए कि कौन सी डेट है, ओके, सिलेक्ट लास्ट डे इन ब्रैकेट DOI। अब DOI के सामने कुछ नहीं लगेगा हमको, क्योंकि हमको सिर्फ क्या है, ये जो हमने डेट्स इंसर्ट की है टेबल में ऑलरेडी, उसका लास्ट डेट चाहिए। तब यहाँ पे सारे अप्रैल है, इसके लिए 30 अप्रैल मिल गए, नहीं तो जुलाई होता तो फिर इफ इट इज 31st इज द लास्ट डे तो आपको 31st मिल जाता था, ओके। क्योंकि हमको कैलेंडर ढूंढने की जरूरत नहीं, अगर हमको कोई जरूरत हम सीधा यहाँ पे कमांड देके देख सकते हैं, ओके। तो लास्ट डे मिलेगा। अब अप्रैल का लास्ट डे कौन सा होता है, 30 दिन का ही होता है। अब नेक्स्ट डे, सिलेक्ट नेक्स्ट डे, मैंने DOT लिया है, DOT मींस डेट ऑफ ट्रैवल, इसमें भी डेट्स ही है हमारे, ओके, डेट्स ऑफ ट्रैवल, फ्राइडे फ्रॉम टिकट हेडर। अब ये फ्राइडे का मीनिंग क्या है कि it gives from the given date what is the next date of next Friday, वो जो डेट दी है उसके जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगा उस दिन कौन सी डेट रहेगी। हमको कभी कभी काम पड़ता है ना ऐसे कि अगर बाबा नेक्स्ट फ्राइडे की क्या डेट रहेगी,
ओके, सो नेक्स्ट डे ये जो डेट्स है टेबल में ओरिजिनल, सपोज जो कुछ होगी ओरिजिनल, उसके नेक्स्ट फ्राइडे को कौन सी डेट आने वाली है। ओके, again the next one is the select months between DOT, DOI, डेट ऑफ ट्रैवल, डेट ऑफ इश्यू, ये दो टेबल कॉलम नेम से हमारे टिकट हेडर टेबल में। ओके, फ्रॉम टिकट हेडर, तो दो टेबल की दो डेट्स के मंथ्स में डेट्स में कितने मंथ्स आएंगे। ओके, सो अभी हम देखते हैं, मैं आपको यही दिखा देती हूँ। सिलेक्ट DOT, DOI फ्रॉम अभी पहले आपको ओरिजिनल दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे मई है और यहाँ पे अप्रैल है। ओके, ये 10 और 10 सेम डेट्स है, इसलिए यहाँ पे पूरा 1 मंथ दिखा दिया उसने। ओके, एग्जैक्टली 1 मंथ है, मंथ्स बिटवीन जो 1 मंथ है। बाकी इसमें अब देखो कैसा है, पहले अप्रैल आता है ना, सो 12 अप्रैल से लेके 5 मई, पूरा 1 महीना भी नहीं है, 1 महीने से कम है, तो उसने कुछ कैलकुलेशंस करके 0.77 दिखा दिया, तो पूरा 1 मंथ भी नहीं है, 1 मंथ से लेस है। ठीक है, इसमें भी देखो 21 अप्रैल टू 15 में 1 महीने से लेस ही है कुछ, बट 0.80 है कुछ। ओके, और इसमें भी 30 अप्रैल से लेके 25 में, सो 0.83। ओके, सो इसमें पूरा 1 मंथ था, तो उसने पूरा 1 मंथ दिखा दिया। सो मींस ये कैलकुलेशन के लिए हमको लगता है काफी टाइम कि मंथ्स बिटवीन, व्हाट इज द नेक्स्ट डे, व्हाट इज द लास्ट डे, व्हाट इज ऐड मंथ्स, दो मंथ्स ऐड करो सब इसमें, लाइक दैट, तो हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। Okay, so are you getting all these date functions? Now next we will see the mathematical or numeric functions. Okay, mod, you know mod function, what mod will return, क्या डिस्प्ले करता है mod function, anyone? Remainder, yes, mod function is always returns or displays the remainder. So अब यहाँ पे हम देंगे here select mod 10,4 from duet, अब ये किसी टेबल से नहीं है ना। ओके, so from duet, so 10 mod 4, quotient is also 2 but remainder is also 2. Okay, so you can write here 10,3, suppose it's confusing, 10,3, remainder क्या आएगा 1. Okay, okay, so mod will return say remainder. Next is power, power means to the power या फिर स्क्वायर बोलते हम, नॉट, select power 3,2, 3,2 means 3 to the power 2. Okay, power means 3 to the power 2, this 3 to the power 2, 3 means 3 square, so it is 9, so it will display the power, you can say square, cube, like that. Okay, then next one is राउंड, पता है आपको राउंड ऑफ करते हैं हम, राउंड ऑफ करते हैं सीयर, जिन लोगों को नहीं पता होगा ध्यान दो अब ये नेक्स्ट फंक्शन, सिलेक्ट राउंड 25.45 फ्रॉम ड्यूअल, तो ये सिर्फ 25 ही दिखाएगा। ओके, क्यों, एक्चुअली राउंड मींस क्या होता है कि अब यहाँ पे राउंड मींस इन जनरल कंसेप्ट क्या है कि डॉट के आगे अगर फर्स्ट लेटर 5 है, फर्स्ट लेटर डिजिट 5 है, तो वो 26 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसको राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। ओके, बट वो भी होता है, बट यहाँ पे हमने आगे कुछ डेसिमल दिया ही नहीं ना,
मैं आपको आगे का पहले एग्जांपल बता देती हूँ। नेक्स्ट इसमें देखो क्या है, कॉमा 2 दिया है मैंने, सिलेक्ट राउंड ऑफ 25.45 कॉमा 2। कॉमा 2 मीनिंग ऑफ कॉमा 2 मींस डेसिमल के बाद मुझे दो, डेसिमल मींस दिस डॉट, दिस इज कॉल्ड एज डेसिमल। इस डेसिमल के बाद मुझे दो डिजिट्स चाहिए, ओके, दैट्स व्हाई दो डिजिट्स तो उसने 45 डिस्प्ले कर दिया। अब यहाँ पे हमने कॉमा 2 लिखा ही नहीं था, कुछ भी नहीं लिखा था कि कितने डेसिमल चाहिए, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 0 डेसिमल चाहिए, तो उसने सिर्फ 25 आपको डिस्प्ले कर दिया। लेकिन अगर मैं देखो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 45 मेन राउंडिंग का, राउंड ऑफ नहीं, so ये सिंपल राउंड ऑफ है, ओके, सिंपल राउंड ऑफ, जस्ट इट विल कन्वर्ट इट अप टू 2 डेसिमल। अगर आप 2 देते हो तो सिंपली वो 2 डेसिमल तक कन्वर्ट करता है, ओके। अब देखो अगर मैं 3 डिजिट्स देती हूँ तो भी वो क्या करेगा, अब मैंने क्या किया 25.454 3 डिजिट्स है, बट कॉमा 2 मींस आई वांट इट अप टू 2 डिजिट्स ओनली, ओके, सो 25.45, ओके। अगर यही मैं और देती हूँ 7, अब यहाँ पे राउंड ऑफ हो गया, देखो सी हियर 25.457 3 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स में से मुझे 2 तक ही चाहिए, बट यहाँ पे 5 के 2 डिजिट्स मींस 4 5, ओके 45। नेक्स्ट डिजिट क्या है 7 इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5, सो 45 में एक ऐड हो गया, दैट इज 46, ओके। ये राउंड ऑफ का कंसेप्ट है। और यहाँ पे देखो 454, मुझे दो कॉमा 2 मींस आई वांट ओनली अप टू 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स मींस डेसिमल के बाद, सो 45। और आगे का क्या है 4, थर्ड वन, थर्ड, बट इट इज लेस देन 5, ओके, सो इसमें कोई एक ऐड नहीं होगा, यहाँ पे 45 का 45 ही रह गया, ओके। सो यहाँ दैट इज द डिफरेंस। ऊपर क्या हो रहा था, उसमें थर्ड कैरेक्टर, थर्ड डिजिट था ही नहीं ना, ऑलरेडी टू डिजिट तक ही था, तो उसको वो राउंड ऑफ नहीं कर सकता ना, ओके। अगर नेक्स्ट, काफी टाइम हमको मैथ्स में काम पड़ता है इसका कि आंसर निकालो तो 0.778956 जैसे बहुत बड़ा आंसर आता है, बट हमको उसको अगर 2 डिजिट्स तक ही चाहिए तो हम उसको यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। और अगर आप उसमें कुछ भी डेसिमल नहीं देते हो फिर से तो क्या हो जाएगा, अगर आप कुछ डेसिमल देते ही नहीं हो, यहाँ पे 3 डिजिट्स है बट यू आर नॉट गिविंग एनी डेसिमल, कॉमा 2 लिखा ही नहीं आपने, इसका मीनिंग क्या है कि आपको 0 डेसिमल चाहिए, सो वो सिर्फ 25 कर देगा। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, 5 डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखो 26 हो गया, हमने क्या कुछ डेसिमल हमको कुछ भी नहीं चाहिए, बट आगे का क्या है, डेसिमल के आगे का 5 है, मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे एक ऐड हो जाता है, ओके। सो ये यहाँ पे ऐसे ऐड हो जाता है। तो मींस हमको जहां तक चाहिए उसका नेक्स्ट डिजिट देखने का है, और नेक्स्ट इफ द नेक्स्ट डिजिट इज greater than equal to 5 then 1 gets added, and if it is less than 5 then it will not any 1 there, that is the meaning, okay. The next one is square root, how to find out the square root, ready-made functions are there, these are the ready-made functions, okay। square root आप कितना भी बड़ा नंबर हो, आप sqrt, sqrt is the function, आप यहाँ पे कोई नंबर डाल दो, it will display the square root of that particular number, then
सील CEIL, सील और फ्लोर ऐसे फंक्शंस है। सील CEIL, तो CEIL में क्या है 10.54, तो 10 के आगे का ही देगा आपको, चाहे सामने 54 हो चाहे 44 हो, यानी पहला डिजिट वगैरह कुछ नहीं देखेगा, लेस देन 5 ग्रेटर देन 5, वो सिर्फ राउंड में देखा जाता है। ओके, सो 54 मींस वो 10 के आगे का ही आपको दिखाएगा, सील करता है। अब नेक्स्ट इसमें मैंने क्या किया है आपको समझने के लिए, नेक्स्ट फिर 10.44, यहाँ पे 54 था, अब यहाँ पे मैंने 44 लिया, मींस 54 इज ग्रेटर देन 50 मींस 5 and first letter is here less than 5, so कुछ फर्क नहीं पड़ा। seal means it will display you the next digit of this one। okay, उसके बाद है floor, floor का अपोजिट है, seal से अपोजिट है वो। फ्लोर करोगे सिलेक्ट FLOOR 10.54 फ्रॉम ड्यूअल, तो वो 10 ही देगा, चाहे आगे का डिजिट 5 हो चाहे 6 हो चाहे 4 हो, पहला वाला डिजिट डॉट के आगे का वो 10 ही देगा। ओके, सो सील मींस नेक्स्ट डिजिट देगा ये कंप्लीशन का, और ये फ्लोर मींस जो है वही देगा। ओके, मैं थोड़ा 5 से लेस लेके देखती हूँ, डॉट के बाद, डॉट के बाद मैंने यहाँ पे 4 दिया मींस 5 से लेस दिया, बट आफ्टर दैट इट इज गिविंग 10 ओनली। ओके, now suppose I want to display the system date। ओके, सिस्टम आपके पीसी की कौन सी डेट है अगर वो डिस्प्ले करनी है आपको, सो देयर इज अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज आज की डेट है 4 मई 21, आपके सिस्टम में जो मींस की होगी फिक्स या सेट की होगी वही दिखाएगा आपको, आपके सिस्टम में आपके पीसी पे लैपटॉप पे जो सेट की हुई डेट होगी वही दिखाएगा। सो ऑल दिस आर द स्ट्रिंग न्यूमेरिक एंड डेट फंक्शंस। सो डू यू हैव एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग दिस? डिफिकल्टी है, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ, यू विल गेट पीपीटी, नो प्रॉब्लम। मैं सेकंड चैप्टर का जो पार्ट 2 है फिर से अपडेट करके भेजने वाली हूँ, जिसमें ये स्ट्रिंग फंक्शंस, आपके एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स ये सब रहेगा। ओके, तो अपडेटेड में भेजती हूँ। प्रीवियस वाली जो भेजी थी वो मैंने आपको पढ़ाई के लिए भेजी थी, जितना हुआ था उतना उसमें। ओके, सो डू यू हैव एनी डिफिकल्टी? ओके, अब मैं ट्रिगर आपको इन शॉर्ट एक 2 मिनट में एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, जस्ट वेट।